uses it? पहले तो what is pointer? So pointer is nothing but a derived data type. Pointer is a derived data type that we already discussed. But now the question is, sir, what is data type? And what is derived data type? What is data type? So guys, data type means what? Sir, simple. If I just use integer, if I just write down integer a, and this statement integer is a data type, means data type is responsible for the memory allocation. Data type is responsible for memory allocation. It is responsible for memory allocation. Like if I just use integer, to declare a variable a, then what will be the size of a, what will be the memory allocation of it? 2 bits. Then who allocate 2 bytes? Who just say to please allocate 2 bytes to a, sir, integer. Integer specified that allocate 2 bytes to a. If I just write down float b, then 4 bytes of memory allocation for b. So we just say 4 bytes of memory allocation for c. Sir, float ने हम लोग को बताया, please allocate 4 bytes to b. Otherwise, computer will allocate, otherwise C language will allocate 4 bytes to b. हमको तो नहीं बताएगा, but it will say like compiler will allocate 4 bytes to C. That means what? The meaning of this thing is data type is responsible for the memory allocation. But data type actually memory allocate नहीं करता. It will inform your C compiler किसको 4 byte. But finally, who will decide कितना memory allocation चाहिए? Who will decide कितना memory allocation चाहिए? Data type. Data type will decide कितना memory allocation चाहिए. So the data type के कुछ types है. Yes, data type के कुछ types है. So types of data type. Types of data type. So guys, there are 3 types of data type. There are 3 types of data types available in any language. कोई भी लैंग्वेज में 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं. फर्स्ट थिंग, पहले टाइटल दे देते हैं डेटा टाइप. सो फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट ए प्रिमिटिव. फर्स्ट टाइप इज प्रिमिटिव डेटा टाइप. Primitive data type, or you can say that primary data type, or you can say that inbuilt data type. Inbuilt data type. So first type is primary, primitive, or inbuilt. Second type is secondary. Secondary data type. Further we can divide the secondary data type into 2 categories. Okay, directly भी आप लिख सकते हो. Okay, secondary is also known as non primitive. Secondary को आप non primitive भी बोल सकते हो. Secondary को non primitive भी बोल सकते हो. Fine. And secondary को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. These 2 types are nothing but a derived data type. Another one is user defined. So total कितने हुए हैं? 3. कौन कौन से हैं? सर, पहला इनबिल्ट, सेकंड वन इज डिराइव्ड, थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड. अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बोलूं इनबिल्ट, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड, अगर आप लाइक एक और लेवल ऐड करना चाहते हो तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अदरवाइज प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव को फर्दर दो, सॉरी नॉन प्रिमिटिव को या सेकेंडरी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करना. दैट्स अप टू यू. ओके, दैट इज अप टू यू. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से आप सेट करते हैं. So this is actually primary and secondary and something like this. So these are the main types or main categories of the data. Okay, these are the main categories or main types of the data. Something like that. Okay, but now what about primitive or what about primary? What about inbuilt? उसमें कौन-कौन से data types हैं? So can you please tell me what about inbuilt? Inbuilt कौन-कौन से data types हैं? और इनबिल्ट डेटा टाइप में किसको बोलूं? कौन से डेटा टाइप्स को इनबिल्ट बोलूं? सर, जिसका मेमोरी एलोकेशन, अदरवाइज जिसकी मदद से आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर को ऑर्डर करो. जैसे इंटीजर मतलब कितने बाइट्स? 2 बाइट्स. फ्लोट मतलब कितने बाइट्स? 4 बाइट्स. तो अगर मैं फ्लोट लिखूं तो मेरे कंपाइलर को पता है 4 बाइट देना. अगर मैं इंटीजर लिखूं तो मेरे कंपाइलर को पता है कि इसको 2 बाइट्स का मेमोरी एलोकेशन. दैट मींस अगर आपके कंपाइलर को डेटा टाइप का साइज पता है, अगर आपके कंपाइलर को डेटा टाइप का साइज पता है, अगर आपका कंपाइलर आपके डेटा टाइप को जानता है, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन कर सकता है विदाउट एनी अनदर टास्क, कोई भी दूसरा स्टेप लिए बिना डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन कर सकता है. जैसे ये तो अपना करता बनता है. दिस इज इनबिल्ट गाइस. ओके, दिस इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, दिस इज प्रिमिटिव, दिस इज प्राइमरी, दिस इज इनबिल्ट डेटा टाइप. तो ऐसे कौन-कौन से डेटा टाइप से कैन यू प्लीज टेल मी? इनबिल्ट वाले कौन-कौन से डेटा टाइप से कैन यू प्लीज टेल मी? यस, integer, float, character. Integer, 1 minute, let I just note down. Okay, integer, float, character, double, double,
ठीक है, बहुत हो गया नहीं? So guys, actually right now we will divide this inbuilt as per the data. As per the data, we will just divide this inbuilt data type into 4 categories. The first one is character. The first one is character. Otherwise, we can just divide into 3 categories also. Okay, पहला हो गया मेरा void. Void is also the one type of data type. पहला हो गया void. दूसरा हो गया मेरा integral. Integral, and the next one is floating point. As per the data मैं group कर रहा हूँ. ओके, void जो फंक्शन बनाने के लिए काम आता है, जो जेनरिक पॉइंटर बनाने के लिए काम आता है, दैट इज void. जो फंक्शन बनाने के लिए काम आता है, जो जेनरिक पॉइंटर बनाने के लिए काम आता है, दैट इज void. व्हाट इज जेनरिक पॉइंटर, वी विल डिस्कस. Okay, what is generic pointer, we will discuss after some time, like after some time, in this is after few minutes or maybe next session. Okay, so void is a inbuilt data type जिसको अपना कंप्यूटर जानता है. Okay, so if someone asks, okay sir, कंप्यूटर इंटीजर को जानता है, and I can say इंटीजर का data type, sir इंटीजर का memory allocation 2 bytes होता है, depend on your operating system, but still it I say 2 bytes होता है. फ्लोट का मेमोरी एलोकेशन 4 बाइट्स होता है, कैरेक्टर का मेमोरी एलोकेशन 1 बाइट होता है. व्हाट अबाउट void? void का मेमोरी एलोकेशन कितना होता है? 0 बाइट्स. void का मेमोरी एलोकेशन होता है 0 बाइट्स. void का मेमोरी एलोकेशन होता है 0 बाइट्स. तो जहां पे मेमोरी एलोकेशन की जरूरत नहीं होती, वी विल यूज void. जनरली फंक्शन के रिटर्न टाइप में, फंक्शन के आर्गुमेंट में इसको यूज करते हैं. सो दैट्स द फर्स्ट टाइप. सेकंड, दिस इंटीग्रल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, कैरेक्टर एंड इंटीजर. कैरेक्टर एंड इंटीजर, इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं. कैरेक्टर, बट सर कैरेक्टर को इंटीग्रल में क्यों रखा? सर बिकॉज ऑफ आस्की कोड. इसका जो भी आस्की कोड है ना, सब इंटीजर पार्ट में आता है. जैसे कि कैपिटल ए का आस्की कोड 65, स्मॉल ए का आस्की कोड 95, 97. ओके, सो ऑल द आस्की कोड्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर न्यूमेरिकल पार्ट, and character can be represented by internally, it will be represented by ASCII code, so that in character is under the category of integral. Character is under the category of integral. I hope that is clear. Okay, it is under the category of integral. So that is the first thing. That is the first thing. Now in integral, the first one is character, second one is integer, and the third one, sorry, let's complete over here. The third one is long integer. The third one is actually long integer. Okay, fine. So let I just एक और ब्रांच बना देते हैं हम लोग इसका. So this is the third one. That is, इसको हम long भी बोलते हैं और काफी लोग long integer भी. Now what will be the size of character? Can anyone tell me what is the size of integer? Yes, anyone? 2. Integer का 2. Very good. What about character? 4. Character 1. character का size 1 byte, madam. So here it is 0 byte. Character is 1 byte. Integer is 2 byte of memory allocation. Long integer 4 bytes. 4. Fine. Now floating point is divided into actually 2 categories. Floating point को भी 2 part में divide कर सकते हैं. That is actually float. Another one is actually double. But one more is there. That is also one more data type actually C language supports. That is actually long double. That is actually long double. So floating point is further divided into actually 3 categories: float, double, and long double. Okay, float, double, and long double. Now, what is the size of float? What is the size of float? Yes, anyone? 4. 4. What about double? 8. So this is 4. This one having 8 byte of memory allocation, and this one having 10 bytes of memory allocation. Okay, this is the size of actually long double is 10. So that is that. That is something about the primitive data type. So this primitive data type मतलब जिसका memory allocation आपके compiler को directly पता है. Okay, so inbuilt data type भी बोलते हैं. Now derived data type. अगर primitive का use करके आप कुछ नया बना, primitive का use करके, जैसे कि मैं ऐसे बोलूं, okay, now here I just write down integer a. What will be the size of it? Size of a is 2. कैसे? तो सर इंटीजर का साइज 2 होता है. ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा, ओके, इंटीजर a of size. Now otherwise a of n, what will be the size of a? a का साइज अब क्या होगा? सर 2 into n. क्यों into n? सर मुझे n इंटीजर्स चाहिए. n इंटीजर्स चाहिए, तो अब डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन नहीं कर सकते. वी हैव टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल टास्क. मुझे कुछ तो मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा. डायरेक्टली आई कैन नॉट अलोकेट एन एलिमेंट.
Okay, our compiler will say, sir, directly I cannot allocate memory. I have to perform some mathematical task. That is known as derived data type. ऐसा कहीं पे भी मेमोरी एलोकेशन करने कहीं पे भी करने के लिए आपको मैथमेटिकल टास्क करने की जरूरत पड़े, इनबिल्ट का यूज करके उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़े, दैट इज डिराइव्ड डेटा। देखो मैंने इनबिल्ट ही यूज किया, बट डायरेक्टली मैं मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया, so that is actually known as derived data type. तो derived data type में सबसे पहली चीज है array, second one is pointer, फंक्शन को भी इसमें ही रखते हैं, बट फंक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल, फंक्शन अलग चीज है, तो हम सिर्फ दो चीजें कंसीडर करेंगे, दैट इज एरे एंड पॉइंटर। तो हम लोग को तो ये जानना था सर पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप। मतलब जब भी पॉइंटर का मेमोरी एलोकेशन करना चाहोगे, इट डिपेंड्स ऑन समवन, ओके। जैसे एरे का मेमोरी एलोकेशन करना है तो सर मैथमेटिकल टास्क करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम समवन। डिराइव्ड मतलब किसी बेस का यूज करके डेवलप करना, किसी चीज का यूज करके उसको डेवलप करना, तो इट्स एक्चुअली नोन एज डिराइव्ड। सो पॉइंटर इज डिराइव्ड। व्हाट अबाउट यूजर डिफाइंड? सो इन यूजर डिफाइंड वी हैव एक्चुअली स्ट्रक्चर एंड यूनियन। दो चीजें आती है इसमें, व्हिच टू थिंग्स आर देयर? स्ट्रक्चर एंड यूनियन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जहां पे आप खुद का डेटा टाइप बना सकते हो, जैसे कि मुझे एम्प्लॉय नाम का डेटा टाइप चाहिए, मुझे स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप चाहिए, मुझे ऐसा कुछ लिखना था, दैट्स माय रिक्वायरमेंट, मुझे ऐसा लिखना था, मुझे खुद का डेटा टाइप बनाना है। सो मैंने लिखा मेरा डेटा टाइप का यूज करके स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप होना चाहिए सर, नहीं है। कैन आई जस्ट डेवलप? यस यू कैन, बाय यूजिंग स्ट्रक्चर और यूनियन आप खुद का डेटा टाइप भी बना सकते हो। So I hope this is clear, guys. Yes, sir. Fine. So लॉन्ग डबल और सिंगल लॉन्ग और डबल में क्या फर्क है? सिंगल लॉन्ग एंड डबल मतलब समझा नहीं। ये यहाँ पे आपने लॉन्ग लिखा है सर साइज का देखे ना डिफरेंस, 8 बाइट्स एंड 10 बाइट्स, तो आप इतना ज्यादा डेटा स्टोर कर पाओगे। गॉट इट? इसका लॉन्ग डबल का 10 ही होता है फिक्स। हाँ, तो फिक्स मतलब कंप्यूटर पहले से फिक्स रखेगा तभी तो प्रिमिटिव में आएगा। अच्छा ठीक। अगर वो फिक्स नहीं है तो वो प्रिमिटिव में आता ही नहीं। Fine. So I hope that is clear. So this is the data type chart. So according to this, I will directly say that our pointer is a derived data. Our pointer is a derived data. Derived data type means if you want to work with the pointer, you need some base. अगर आप pointer के साथ work करना चाहते हो तो आपको कोई तो base चाहिए, वो किसी और पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। अगर आप pointer के साथ वर्क करना चाहते हो तो डायरेक्टली पॉइंटर कभी भी साइज नहीं देगा। डेटा टाइप का मतलब यही होता है कि वो साइज, वो मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम करता है। बट पॉइंटर जैसे हो आई एम अ डिराइव्ड डेटा टाइप, सो डायरेक्टली आई विल नॉट allocate a memory. Directly I will not allocate a memory. I depends on someone. I will use some guy, मैं किसी और का यूज करके मेमोरी डायरेक्टली I will not allocate it. Is it fine? Second, pointer is used to store memory address. Third, pointer is used for dynamic memory allocation. So this we completed. Okay, dynamic memory allocation हम complete कर चुके। So आज का हमारा मेन टॉपिक है pointer is used to store the memory address. What is memory address and how pointer store, और उसके ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, मेन वही टारगेट है हमारा। आई होप ये आपको समझ में आया। सो अगर किसी ने वंस अगेन आपको पूछा, मान लो हम लोग एक और बार रिपीट कर लेते हैं, इफ समवन आस्क व्हाट इज पॉइंटर, देन व्हाट इज द रिप्लाई? व्हाट इज पॉइंटर गाइस? पॉइंटर इज ए derived data type. Derived data type means what? Derived data type means what? तो पहले हम लोग को डेटा टाइप पता होना चाहिए। डेटा टाइप मींस व्हाट? सर मेमोरी एलोकेशन के लिए काम आता है। सो पॉइंटर डायरेक्टली मेमोरी एलोकेट कर देगा? नहीं, पॉइंटर कभी डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट नहीं करता। पॉइंटर कभी भी डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट नहीं करता, वो चेक करता है वो किसी और के ऊपर से डिराइव्ड किया है, सम अनदर कांसेप्ट इज डायरेक्टली डेटा टाइप देख के वो मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकता। इज इट फाइन? Now, next thing is it is used for the dynamic memory allocation also. Let's just ignore this. हाँ, विक्रम कुछ बोल रहे थे? नहीं सर।
Okay, so now guys, let me just once again come to this brush, मतलब paint brush. So now guys, consider मैंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ लिखा, 1 मिनट, मैंने एक इंटीजर a, मैंने ऐसा कुछ कोड लिखा इंटीजर a. तो हम लोग क्या बोलेंगे, कितना मेमोरी एलोकेशन मिलने वाला है भाई? 2 bytes. What about float? 4. What about character? 1. बट मेमोरी एलोकेशन मिलेगा कहाँ पे? इन सबको मेमोरी एलोकेट कहाँ होगी भाई? तो कंसीडर दिस इज द रैम. ओके, ऐसा नहीं बनाते रैम को, हम लोग उसको रेक्टेंगल फॉर्मेट में बना देंगे. दिस इज द मेमोरी. सो मे बी कहीं पे रैंडमली लाइक ए को मेमोरी एलोकेट मिल जाएगा, रैंडमली बी को मेमोरी एलोकेट मिल जाएगा, रैंडमली सी को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, कहीं भी रैंडमली हो जाएगा. बट मैं इस रैंडम की जगह ऐसा मान लेता हूँ, I have a actually one slot, I have a one block, I have a one block of, otherwise one stack of, one stack in the sense you can say that it's actually like it's a one type of column जिसके ऊपर एक के ऊपर दूसरा बैठा हुआ. It's a column जहाँ एक के ऊपर दूसरे को सेट किया हुआ. अब stack in the sense a group of items which actually depends on another one. मतलब it actually set it on another one. एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे पूरा पिलर बना हुआ. Okay, so this is the stack. ओके, सो यहाँ पे मान के चलते हैं कि दिस इज अ मेमोरी फॉर ए. यहाँ पे हमने ए का कुछ मेमोरी एलोकेट किया, दिस इज फॉर ए. नाउ रैंडमली इट्स अ रैंडम मेमोरी एलोकेशन, सो यहाँ बी का कुछ मेमोरी एलोकेशन हुआ, हियर देयर इज सी मेमोरी एलोकेशन फॉर सी. ओके, सबका कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट कर देते हैं. दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर सी. बट नाउ द क्वेश्चन इज सर, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये जो ब्लॉक आपने बनाया, ये जो पिलर आपने बनाया, जो कॉलम आपने बनाया, इट्स अ ग्रुप ऑफ बाइट्स, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे बाइट्स थे. ओके, ये पूरा रैम था. मतलब आपका कहना ऐसा है कि यहाँ पे तो बहुत सारे मेमोरी एलोकेशन थे, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी. उसमें से ए को कुछ साइज मिला, बी को कुछ साइज मिला, सी को कुछ साइज मिला. तो ये ब्लॉक का साइज क्या था? ये पूरे ब्लॉक का साइज क्या था? कितने ऐसे पिलर में कितने वैल्यूज? तो टोटल यहाँ पे ऐसे जो वर्टिकल मैंने लिखे हैं, ऐसे ऐसे टोटल मेरे पास, मतलब वर्टिकल के अंदर ऐसे कैसे छोटे छोटे बॉक्सेस कितने होंगे? तो 1 बाइट के 65,536 ब्लॉक्स है. मतलब इतने बाइट्स का एक ब्लॉक होता है, इतने बाइट्स का एक ब्लॉक होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें से मैंने 2 बाइट्स किसको दिए? इसमें से मैंने 2 बाइट्स ए को दिए, सिंगल बाइट सी को दिया, और ऐसे 4 बाइट हमने बी के लिए रखा. ऐसे 4 बाइट हमने बी के लिए रखा. आर यू गेटिंग माय? 4 बाइट बी को मिले, ए को 2 बाइट्स मिले, बिकॉज माय डेटा जैसे डेटा टाइप जैसे ए को 2 बाइट्स मिलने चाहिए, फ्लोट को 4 बाइट मिलने चाहिए, कैरेक्टर को 1 बाइट मिलता है. ऐसा अपने कंप्यूटर को ऑर्डर मिला था, पर वो अलोकेट कहाँ करेगा? सो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ. मान लो मैं ऐसे बोलूँ, आई हैव ए सोसाइटी. ओके, आई हैव ए सोसाइटी, एंड इन दैट सोसाइटी आई हैव ए सोसाइटी, जैसे अदरवाइज आई हैव ए सिटी. ओके, मेरे पास एक सिटी है, सो कंसीडर दिस इज सिटी. Okay, this is city. This is the city. In that city, I have a society. So this is a society. अंदर जो block है, that is society. Outer वाला जो rectangle है, round corner rectangle है, that is your city. अंदर का जो एक block बना रखा है, that is actually society. That is actually a society. Now in this society, I have some like blocks item. Blocks in the sense some row houses item. कितने row houses है? Sir, 65,536. 65,536 रो हाउसेज आते हैं. ऐसे छोटे छोटे बंगलोज है. ओके, 65,536 बंगलोज आते हैं. एंड नाउ आई हैव अ गेस्ट एंड द नेम ऑफ द गेस्ट इज ए. मेरे पास पहला एक गेस्ट अपीयर हुआ, उसका नाम ए. उसने पहले ही बोला, सर आई नीड 2 बंगलोज, मुझे 2 बंगलो चाहिए. आई जस्ट से, ओ सर, ए नाम के सर को मैंने 2 बंगलोज दी. Then I have a B, the name of the guy is B, otherwise the family name is B, and that required 4 bungalows. The family name C required 1 bungalow. So I just allocate them. मैंने सबको कुछ ना कुछ bungalows दिए. But now after that, in the next morning, someone wants to say, sir, let me just serve a breakfast to all these guys जो अपनी सोसाइटी में रह रहे, उन सबको हम लोग को like breakfast, otherwise let I say कोविड की वैक्सीन देनी. So अपने पास तो कितने बंगलोज थे गाइस? कितने बंगलोज थे हमारे पास? हमारे पास तो 65,536 बंगलोज है. उसमें से ऑक्यूपाइड कितने? सर, ए को 2 बंगलोज दिए थे, सी को 1 बंगलो दिया, इसको 4 बंगलोज. टोटल कितने बंगलोज ऑक्यूपाइड है? कितने कंज्यूम हो चुके हैं? 7 बंगलोज. कौन कौन से 7 बंगलोज? 65,536 बंगलोज में से आप 7 बंगलोज में ही बंदे रह रहे.
तो यहीं पे जाके मुझे वैक्सीनेशन करना। व्हाट अबाउट अदर बंगलोज? सर्च करने में क्यों क्या मैं पागल हो जाएंगे हम लोग। ऐसा तो पूरा सिटी है मेरे पास, ऐसे सिटीज में बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है। तो गाइस इजीली एबीसी के पास पहुंचने के लिए हम ए को पहले से बोलेंगे, ओए ए तुझे 2 बंगलो दे रहा हूं मैं, ओके, बट तुझे कंटिन्यूसली 2 बंगलो लेने। पहले बंगले का एड्रेस 10,000, पहले बंगले का एड्रेस क्या है 10,000। व्हाट अबाउट सेकंड बंगलो 10,001? तो ए को कौन से 2 बंगलोज दिए 10,000 एंड 10,000। व्हाट अबाउट बी के लिए कुछ रैंडम और बंगलोज ले लेते, लेते इसे 25,000 से लेके 25,003 तक, अदरवाइज 25,001 से 25,004 तक बी को दिया। ओके ये अपना सी उसको बोल देते तो जो 15,000 उसको कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे, उसको कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। नाउ इफ समवन वांट्स टू से सर ए वाले बंदे के पास जाना, मैं क्या बोलूंगा 10,000 पे चले जा डायरेक्ट। So can I directly access that bungalow? Can I directly access that the A family? Yes, because we have an address. हमारे पास उसका एड्रेस है, उसका बंगलो नंबर है, उसका ब्लॉक नंबर अवेलेबल है। So guys, this address I want to store. This address I want to store. Address by default होता है, जब आप मेमोरी एलोकेट कराओगे, वेरिएबल्स बनाओगे तब एड्रेस बन जाता है, बट मुझे इस एड्रेस को स्टोर करना है। कौन यूज होगा? बट ऑब्वियस अवर हीरो पॉइंटर, our today's session hero, that is pointer. So pointer is used to store the address. अगर ये एड्रेस आपको चाहिए, अगर ये आपको एड्रेस चाहिए तो पॉइंटर का एड्रेस बनेगा कब एड्रेस बनेगा? सब ए नाम की फैमिली आएगी। ए नाम की फैमिली देखो मेरे पास, लाइक मान लो एक होटल है, होटल में मेरे पास एक्चुअली कंसीडर 100 रूम्स वी हैव एंड वी आर सिटिंग ऑन अ मैनेजिंग सीट। ओके, वी आर सिटिंग ऑन अ मैनेजर सीट। हमारे पास एक्चुअली 100 रूम्स है and some family comes and just want to say, otherwise one guy just came over there and just say, oh sir, I want a room for a night. मुझे एक दिन के लिए 20 for the next 24 hours I want to just get a room on rent. So what I will say, मुझे 24 hours तक उसको एक रूम रेंट पे देना है। तो मैं क्या बोलूंगा, ओके 10th नंबर के रूम पे चलो। Right now my 10th number of block is occupied. ओके सो मैं क्या बोलूंगा, जो बंदा आया था उसके लिए मैंने मेमोरी एड्रेस दिया 10। मान लो फैमिली आई, उसको लाइक मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ 50। एक बंदा और आया, उसको हम लोग एक एड्रेस दे रहे 20। सो ये सब कब जनरेट हो रहा है? मेमोरी एड्रेस ऑलरेडी थे, यस ऑलरेडी मेरे पास पूरा 65,536 बाइट्स का एक बल्क ऑफ मेमोरी एलोकेशन था, बट उसमें से यूज कब हो रहा है गाइस? यूज कब हो रहा है? जब बंदे आ रहे हैं। मतलब जब आपका वेरिएबल बन रहा है। सो अगर मैं लिखूं इंटीजर ए तो मेमोरी एलोकेशन हुआ तो एड्रेस का मेमोरी एलोकेशन हुआ तो एड्रेस काम था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेमोरी एलोकेशन हुआ तो ही मुझे एड्रेस काम था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ही मुझे एड्रेस मिलेगा। अब वो एड्रेस किसको पता होगा? सर ए को पता होगा। एड्रेस किसको पता होगा? ए को पता होगा। सो ए से एड्रेस चाहिए तो सो एड्रेस लेने के लिए एक ऑपरेटर है एंड ए। मुझे ए का डेटा नहीं चाहिए। ए में कौन स्टोर्ड? ए के अंदर मान लो 100 है, ए का वैल्यू 100 है, तो मैं सिंपल ऐसा बोलूं सर प्लीज प्रिंट ए। तो आप क्या बोलोगे? सर लेट अस जस्ट प्रिंट ए परसेंटेज बी ए। तो एड्रेस ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट ए, वो वैल्यू प्रिंट करेगा। बट अगर आपको एड्रेस चाहिए जस्ट से एंड ए। व्हाट इज एंड? इट इज नोन एज, ओके कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज प्लस, व्हाट इज माइनस, व्हाट इज इनटू? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज प्लस? Arithmetic operator. Arithmetic operator is a category name. मैं सिंपली बोलूंगा इट इज प्लस। अरिथमेटिक, ये सबको अरिथमेटिक ही बोलते हैं। दिस इज सब्सट्रैक्शन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज दैट? Address. It is an address operator. It is just used to find out the address. It is just used to find out the address of a guy. Is it clear? But now my question is, sir, अगर आप ऐसा बोल रहे हो, can you please tell me address का रेंज कहाँ से कहाँ तक? कोई भी बंदा आया, मैं मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूँ, बट एड्रेस का रेंज कहाँ से होगा? कैन यू प्लीज टेल मी? बट ऑब्वियस टोटल कितने बंदे हैं अपने पास? टोटल कितने? 65,536। अपना कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करता है सब कुछ। लास्ट वाला बंदा कहाँ पे? ओह दैट्स फाइन। सो दिस इज नंबर, दिस इज द रेंज जहां पे ही हम लोग बंगलोज के एड्रेस मिलेंगे। मतलब मान लो मैं ऐसा बोलूं मेरे पास 100 रूम है,
पहले रूम का एड्रेस मैंने 0 रखा, लास्ट वाले का एड्रेस क्या होगा 99। अब कोई भी बंदा आएगा तो मैं उसको रूम नंबर दूंगा, तो कौन सी रेंज में रूम नंबर एलोकेट होगा सर, 0 से लेके 99 तक। तो यहाँ हमारे पास कितने रूम्स अवेलेबल है सर, हमारे पास टोटल कितने रूम अवेलेबल है, टोटल हमारे पास है 65,536। दैट मीन्स अगर मैं 0 से नंबरिंग स्टार्ट करूं तो लास्ट वाले का नंबर क्या होगा, 0 से लेके 65,535। मतलब सर आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर हम इनमें से कोई भी टाइप के बंदे का इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर किसी का भी एड्रेस निकाले, वो इसमें से ही मिलेगा ना, अगर ये कहानी सही है तो इसमें से ही मिलेगा ना बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes. सो लेट मी ट्राई, हम लोग ट्राई करके देखते हैं, कोई वेरिएबल्स बनाते हैं और उनके एड्रेस फाइंड आउट। ओके सो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसकी वैल्यू हम कुछ भी रख देंगे, लेट आई से 100। मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है तो क्या करूँ, इज इट फाइन, चेक कर लेते हैं। ओह इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। मुझे एड्रेस प्रिंट करना है, वो भी नई लाइन। सो आई विल जस्ट से स्लैश एन एड्रेस इज इक्वल्स टू, ओ एड्रेस इक्वल्स टू क्या, सो प्रिंट एड्रेस को प्रिंट करने के लिए मैं वो तो भूल गया था, इंटीजर मतलब %d लिखूं, %f लिखूं, बट मैंने इतना तो सोचा था कि हाँ एड्रेस आ रहा है तो इंटीजर में, एड्रेस आ रहा है इंटीजर में। देखो ना 0 से 65,535 कहीं भी पॉइंट नहीं है, 1 की बाइट का मतलब एक ब्लॉक एक बाइट का है। तो मुझे जो भी एड्रेस मिलेगा वो इंटीजर में मिलेगा। सो लेट आई जस्ट ट्राई टू यूज %d ए लिखना है, नहीं क्या लिखना है मुझको, एंड क्या आना चाहिए, डेटा आउटपुट क्या आना चाहिए सर, क्या पता क्या रूम दिया, उसने कौन सा एड्रेस अलोकेट किया हमको कैसे पता, रन करेंगे बट आंसर कौन सी रेंज में आएगा वो तो पता है ना। नेगेटिव आंसर आएगा गाइस कि नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉइंट में आएगा आंसर, नहीं चेक करें, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। Yes. सो इज इट गाइस फाइन, जो हमने डिस्कस किया था वो मिल गया। विक्रम, स्मिथ, खुशबू, चलिए एड्रेस वाला फिर से रिपीट करो ना। कौन सा एड्रेस वाला, एड्रेस वाला मतलब, ये आपने अभी एड्रेस में समझा ना, ये -1 कैसे आया 12, -1 तो मैंने समझा ही नहीं। मतलब हमने क्या रन समझा, हमने क्या समझा, हमने तो समझा था पॉजिटिव आना चाहिए, हमने तो समझा था पॉजिटिव आना चाहिए। ये भाई साहब बोल रहे नेगेटिव आया, ये तो ये नेगेटिव लाया, हम थोड़ी लाया है, समझ रहे हो। हमने तो पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन से ही रन किया था बेचारे को, पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन से ही रन किया था, बट इसने मुझे नेगेटिव दिया, तो अब समझना पड़ेगा नेगेटिव कहाँ से लाया भाई, पॉजिटिव आना चाहिए था, नेगेटिव कहाँ से लाया। सो गाइस ये नेगेटिव क्यों दे रहा है, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बताओगे इंटीजर का साइज क्या रहता है, 2 बाइट। 2 बाइट्स मतलब रेंज क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताए, 1 बाइट का मतलब 8 बिट, तो 2 बाइट 8 मतलब कितने बिट्स, 8. 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। ओके तो इंटीजर का रेंज होता है, इंटीजर का रेंज होता है 16 बिट्स बोला ना, तो इंटीजर का रेंज होता है 2 to 16, 0 से लेके 2 to 16 -1, बिकॉज वी हैव 16 ब्लॉक्स, बट वी विल से नहीं सर 16 ब्लॉक्स में से 16 बिट्स में से एक बिट पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा सिंबल स्टोर करने के लिए काम होता है। ओके तो ब्लॉक्स कितने बच गए डेटा स्टोर करने के लिए, 15। सो रेंज कुछ ऐसा होगा। मैंने -1 क्यों लिखा, बिकॉज हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 2 to 15 -1, 0 से 2 to 15, 2 to 15 का एक बार मीनिंग निकाल लेते हैं कि 2 to 15 मतलब क्या। सो 2 to 15 मतलब 32,768। सो रेंज क्या हुआ गाइस, रेंज हुआ 0 से 32,768 नहीं लिख रहा मैं, क्या लिखूंगा 67, क्यों, बिकॉज एक कम कर दिया। अदरवाइज एक बार यहाँ पे 68 लिख भी दीजिए, -1 कर दीजिए, एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको 67। ओके बट आप क्या बोलोगे सर, हमारे पास 2 बाइट्स था,
2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स थे, आपने एक बिट यहाँ कम क्यों लिखा? बिकॉज आपने ऐसा बोला कि मैं प्लस या माइनस का सिंबल लिखूंगा, और आपने रेंज सिर्फ पॉजिटिव की लिखी, नेगेटिव की रेंज कौन लिखेगा? क्योंकि आपने बोला था ना माइनस के सिंबल के साथ भी डेटा स्टोर होगा, मतलब एज पर दैट इज नेगेटिव डेटा। यस, ठीक है। तो अब हमारी रेंज होगी -2⁻15 से लेके पॉजिटिव, ये पूरा अपना रेंज होगा। सो एक्चुअली क्योंकि नेगेटिव में भी 15 ब्लॉक्स यूज होंगे, पॉजिटिव के लिए भी 15 ब्लॉक्स, नेगेटिव के लिए भी 15 ब्लॉक्स यूज होंगे। लाइक ऐसे मैं ऐसा बोल रहा था, मेरे पास ऐसे 15 ब्लॉक्स है, मेरे पास इस तरीके से कुछ 15 ब्लॉक्स है, एक एक ब्लॉक में एक बिट स्टोर कर सकते हैं, ऐसे मेरे पास 15 ब्लॉक्स है। ओके, बट इसके जो आगे का ब्लॉक है ना, वहां पे मैं प्लस रख सकता हूँ, मतलब ये 15 ब्लॉक्स मेरे पास अवेलेबल है विथ पॉजिटिव साइन, एंड ये 15 ब्लॉक्स मेरे पास अवेलेबल है, ये 15 ब्लॉक्स मेरे पास अवेलेबल है विथ नेगेटिव साइन। ओके, मतलब या तो मैं 15 के आगे यहाँ पे कोई भी डेटा पॉजिटिव के साथ भी स्टोर कर सकता हूँ, नेगेटिव के साथ भी कर सकता हूँ। तो मेरा रेंज हो जाएगा 32768 से लेके 32767। सर पीछे 7 क्यों? बिकॉज उसमें हमने 0 कंसीडर किया था पॉजिटिव के, पॉजिटिव की रेंज में 0 कंसीडर किया तो उसमें एक डिक्रीज किया, नेगेटिव की रेंज में 0 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में 0 थोड़ी आता है। सो माय रेंज इज दिस इज द रेंज ऑफ इंटीजर। इंटीजर इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकता, इससे ज्यादा डेटा डिस्प्ले नहीं करा सकता, स्टोर नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इससे ज्यादा डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बिकॉज क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज उसका मेमोरी एलोकेशन ही नहीं है, उसका मेमोरी एलोकेशन ही नहीं है। नाउ गाइस, हम लोग हमारे पॉइंट पे आते हैं। हम लोग ने जो एड्रेस की बात की थी अभी, सो कैन यू प्लीज टेल मी ये रेंज क्या थी, एड्रेस की रेंज क्या थी? सर ये तो 65,000 तक जाता है। इंटीजर का रेंज क्या है? 32,000। तो ये तो इंटीजर की रेंज से बाहर है। तो अगर ये इंटीजर की रेंज से बाहर है तो आप परसेंटेज डी कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो एक छोटू सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो अगर हमारा इंटीजर का रेंज सही है, व्हाट इज द इंटीजर रेंज गाइस? हमने अभी लिखा था, कहां से कहां तक? दिस इज द रेंज ना, 1 मिनट, ठीक है, -32768 to 32767, दिस इज द रेंज, ठीक है ना, ये अपना इंटीजर का रेंज है। सो अगर ये रेंज सही है, अगर ये रेंज सही है, दैट मीन्स व्हाट? अगर मैं इंटीजर का ये रेंज हमने जो कैलकुलेट किया अभी वो सही है, दैट मीन्स इंटीजर में इससे ज्यादा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ऐसा? सो लेट मी चेक, मैं 32767 स्टोर करके एक बार प्रिंट कर देता हूँ, आउटपुट क्या आना चाहिए खुशबू? 32767 बिकॉज रेंज के अंदर का डेटा है। तो इसमें एरर बिकॉज मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया। हियर वी हैव 32767, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे एक डेटा ज्यादा रखते हैं ना, क्योंकि ये तो हमको पता था रेंज में है विक्रम, तो एक एलिमेंट ज्यादा रख रहा हूँ, क्या आउटपुट आना चाहिए? माइनस में माइनस। देखो कुछ भी आएगा। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कभी भी कुछ भी नहीं आता। सर एक बार मैंने बताया था तब ऐसे, मतलब बहुत बार सही आता है लेकिन कभी कभी कुछ भी आ जाता है। चलो अभी 769 रखते हैं तो क्या आएगा? 767। क्यों उल्टा चल रहा है? पॉजिटिव की रेंज से उल्टा नेगेटिव की रेंज की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ऐसा बोले, ठीक है, तो अगर मान लो आपने यहाँ पे नेगेटिव में 32768 रखा तो वो रेंज के अंदर है, एज इट इज डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसा करूँ कि सर देन अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव में 69 रखूँ तो क्या आउटपुट आएगा? नेगेटिव में 69 की जगह 70 रखे तो आउटपुट क्या आएगा? यस गाइस, तो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा सर, देखो जरा, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब एक साइकिल जैसा चल रहा है, मतलब एक साइकिल जैसा चल रहा है, मतलब एक रेंज दिया, एक रेंज मुझे मिला यहाँ से यहाँ तक, अगर आप इस रेंज से ऊपर जा रहे हो तो ऐसे घूम जाओगे, और नेगेटिव में उससे बाहर जा रहे हो तो ऐसे घूम जाओगे, मतलब कभी भी 32,768 से ऊपर नहीं जाओ। ओके, तो क्या यहाँ पहुंचने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो इंटीजर से रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इसलिए भाई ने -12 दिया था। क्यों? मान लो ऐसा है, अपना इंटीजर का रेंज है 32767, अपना इंटीजर का रेंज है 3276, इससे ऊपर डेटा आया तो नेगेटिव में घूम गया है ना स्मिथ, तो इससे ऊपर डेटा आया, यहाँ इस पोजीशन से ऊपर डेटा आया तो वो तो नेगेटिव में घूम गया ऐसा। अब चलते चलते मान लो यहाँ आया और उसका वैल्यू -12 है, तो
तो भाई ने -12 दिया। सो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या रखे? एक सॉल्यूशन है, ये पूरी रेंज को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर इंटीजर की जगह अनसाइंड इंटीजर ले लूं, अनसाइंड मतलब मैं अपने कंप्यूटर को बोलूंगा कंप्यूटर मुझे इंटीजर वैल्यू में नेगेटिव डेटा स्टोर नहीं करना, ओनली पॉजिटिव आई वांट टू स्टोर, ओनली पॉजिटिव। सो बाकी सब तो सेम, बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज एन इंटीजर। बट इंटीजर में एक और चीज, साइंड एंड अनसाइंड। साइंड मतलब इट कैन स्टोर पॉजिटिव डेटा, नेगेटिव डेटा एंड जीरो। साइंड मतलब ये तीनों चीज स्टोर कर सकता है। एंड अनसाइंड मीन्स व्हाट? अनसाइंड मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंड जीरो ही स्टोर हो। तो ये 16 बिट्स, मतलब देखो अपने पास 16 बिट में से एक बिट हम खराब करते थे, बिकॉज हम लोग को प्लस और माइनस ऐसे सिंबल स्टोर करते थे। बट अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर सिर्फ प्लस ही स्टोर करना, नेगेटिव स्टोर ही नहीं करना। तो हम लोग 16 के 16 बिट्स डेटा स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। 16 to 16 बिट्स डेटा स्टोर करने के लिए यूज करेंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है, 16 to 16 बिट्स डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब मेरा रेंज हो जाएगा 0 से लेके 2⁻16 माइनस है। नाउ व्हाट इज दैट 2⁻16? 2⁻16, oh that is 65,536। तो यहाँ आ जाएगा 65,536, उसमें से कट हुआ 65,535। सो रेंज हो गया 0 से 65,535। ये रेंज अभी कहीं सुना सा है, देखो ये रहा 65,535। तो अगर आप एड्रेस को स्टोर करना चाहते हो गाइज, मेरे हिसाब से आपको अनसाइंड इंटीजर यूज करना चाहिए। इंटीजर की जगह आपको अनसाइंड इंटीजर यूज करना चाहिए। बट सर हम तो एड्रेस को स्टोर ही नहीं कर रहा था, हमने तो ऐसा सोचा था कि हमारे पास एड्रेस अवेलेबल है। वो एड्रेस हमको कहाँ से मिला? हम लोग को एड्रेस कहाँ से मिला? सर ए बनाया था तो एड्रेस मिल गया। हम तो डायरेक्टली कहीं पॉइंटर का यूज ही नहीं किया अब तक, हमने कहीं स्टोर नहीं किया, हम तो डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ डिस्प्ले कर रहे हो, परसेंटेज डी मत लिखो, बिकॉज परसेंटेज डी साइन इंटीजर के लिए। तो क्या लिखे? परसेंटेज यू। क्यों यू? बिकॉज यू स्टैंड्स फॉर अनसाइन इंटीजर। सो मैं दोनों चीज लिखने वाला हूँ, मैं यू लिख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। ओह दैट्स फाइन। क्या वैल्यू मिला? 65,524। ये अपने इंटीजर की रेंज से बाहर था। इंटीजर का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक स्टोर कर सकते हैं इंटीजर में? 32,767। उससे बाहर गया तो नेगेटिव में चला जाता है, इसलिए भाई साहब नेगेटिव में दे रहे थे। आर यू गेटिंग? इसलिए भाई साहब नेगेटिव में दे रहे थे। आई होप दैट इज क्लियर। So percentage u is used to display the value of address. It is just used to represent. It is just used to display a memory address. Is it clear, guys? Yes. Yes, sir. But now if someone says, sir, अगर मान लो मेरे पास कुछ इंटीजर डेटा है, ओके मेरे पास कुछ इंटीजर डेटा है, एंड मुझे उसका इंटीजर मतलब क्या? जैसे मान लो मैं ऐसे बोलूँ आई हैव इंटीजर ऑफ, मेरे पास 20 है, मुझे इसको डिस्प्ले करना है। तो इंटीजर के लिए तो आई लिखा जाता है ना, अब डी क्यों लिखते हो? इंटीजर के लिए तो आई लिखा जाता है, जैसे फ्लोट के लिए एफ, कैरेक्टर के लिए सी, तो इसके लिए आई क्यों नहीं? तो आई चलेगा ना गाइस, आई चलेगा क्या? यस इट इज अलाउड, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो डी क्यों लिखते हैं? तो हम डी क्यों लिखते हैं? डी मीन्स डेसिमल। व्हाट इज डेसिमल? दैट इज फ्रॉम नंबर सिस्टम, दैट कम्स फ्रॉम द नंबर सिस्टम। ओके डी फॉर डेसिमल। सो सर अगर डी फॉर डेसिमल है तो ओ फॉर ऑक्टल होता है क्या? हेक्साडेसिमल के लिए क्या होगा गाइस? ओ फॉर ऑक्टल किया साजी? यस एच होगा सर। एक्स, हेक्साडेसिमल के लिए एक्स, हाँ एच नहीं है, ध्यान रखना। ओ तो ये तो 20 की जगह 24 और 14 दे रहा है। लेट वी चेक, ऐसे थोड़ी चलेगा। अपने केएलसी को पूछते हैं, तो केएलसी में 1 मिनट, yeah fine, so मैं साइंटिफिक की जगह, ओके सॉरी स्टैंडर्ड इज देयर ना, ओके दैट इज साइंटिफिक की जगह मैं प्रोग्रामर ले रहा हूँ। अब मैं यहाँ बोल देता हूँ दिस इज माय 20, मैंने 20 इनपुट किया। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल, जस्ट फोकस हियर, क्या दिया है? 14, डेसिमल 20, ऑक्टल 24। अब हमारा प्रोग्राम क्या दे रहा है? इट जस्ट से 20, 24, 14, दैट मींस इट इज सेम। पहले डेसिमल, तो आई लिखना मतलब इंटीजर बाय डिफॉल्ट डेसिमल में डिस्प्ले करता है, तो पहला 20 तो ठीक है। सेकंड 20 बिकॉज ऑफ परसेंटेज डी, वो डेसिमल पे प्रिंट करता है। 24 बिकॉज ऑफ ऑक्टल,
and 14 it is for hexadecimal. So sir मैं डेटा चेंज करूँ क्या, मैं यहाँ लिखूँ 65,524, then what will be the answer? चेक करते हैं. So -12 क्यों? Because इंटीजर की रेंज से बाहर था, इसलिए -12. What is that 1777664 octal data? What about that FFF4 sir hexadecimal representation? तो मुझे कैपिटल चाहिए, तो मुझे कैपिटल में FFF चाहिए, तो बिकॉज हेक्साडेसिमल में हमने सीखा था, मतलब अपने कॉलेज टाइम पे सीखा होगा कि आप छोटू बड़ू कुछ भी कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो. तो मुझे कैपिटल में चाहिए, कैपिटल एक्स लिखो ना, दैट्स फाइन, लेट मी रन. सो आउटपुट में आएगा ट्रिपिटल FFF4, कैपिटल FFF4. बट सर ये क्यों पढ़ा हमने, अलग अलग नंबर सिस्टम में हमने क्यों पढ़ा, हम लोग को ये समझ में तो आया बट क्यों पढ़ा. सो गाइस मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ. जैसे हमने इंटीजर के लिए परसेंटेज आई लिखा हुआ था, पॉइंट सॉरी अपने फ्लोट के लिए परसेंटेज डी लिखा हुआ, सॉरी फ्लोट के लिए क्या था, परसेंटेज एफ था. उसी तरीके से पॉइंटर के लिए परसेंटेज पी क्यों नहीं, परसेंटेज पी क्यों नहीं, परसेंटेज पी अवेलेबल है ना, परसेंटेज पी इज आल्सो देयर, बट वो एड्रेस को हेक्साडेसिमल में स्टोर करता है, सॉरी हेक्साडेसिमल में प्रिंट करता है, एड्रेस को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करता है. तो हमको पता नहीं चलता ये FFF4 कहां से आया, बिकॉज हमारे पास कितने ब्लॉक्स थे, 65,536. हमने नाम कहां से दिया था, 0 से लेके 65,535. तो FFF कहां से आया, FFF4. तो व्हाट इज दैट, दैट इज एक्चुअली हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नंबर, दैट इज द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नंबर. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो दैट मैंने ये पूरी कथा कहानी सिखाई. तो पॉइंटर को आप कैसे भी डिस्प्ले करा लो, सॉरी एड्रेस को आप कैसे भी डिस्प्ले करा लो, या तो परसेंटेज डी लिखो, में भी नेगेटिव आ सकता है, परसेंटेज यू लिखो, दैट्स योर चॉइस, एंड परसेंटेज पी आल्सो वी कैन यूज. सो हम लोग परसेंटेज पी लिखेंगे.